Hi guys, welcome to the next part for the topical video of mensuration O levels 4024. So last time हमने यहाँ तक questions किए थे. Last May June 24 paper 2-2. Now we'll start from October November 23 paper 2-2 question number 10 part A. Yes, this is about cone 1 upon 3 pi r square h. The curved surface area of the cone, the formula is given. Now let's read the question. A solid is formed from a large cone with a small cone removed from the center. The small cone is mathematically similar to the large cone. The vertex of the large cone is vertically below the vertex of a small cone. Okay. The height of a large cone is 21. Okay. And the diameter of the top is 18. The height of a small cone is 14. The height of the small cone is 14. So let's mark it. This is the small cone that is removed here. And its height is 14. Show that the volume of the solid is 399 pi. Right? So what is the approach? Approach is that from the bigger cone we need to remove the small cone. Right? So the radius for the large cone is 18 divided by 2, which is 9 centimeter, right? And the approach that we will be using to find out the volume of this solid is we are going to subtract a larger cone volume from the smaller cone volume, and for that we need to find out, we know the radius of a large cone, we know the height of the large cone, we know the height of a small cone, but we don't know the radius of the small cone. And the radius of this small cone is, let's say, r. A hint is given, right? The small cone is mathematically similar to the large cone. So we can find out by symmetry. By symmetry, if you can understand, let's see this. We have a triangle here, right? This is 9 centimeter, and the smaller triangle, let me draw it here. The smaller triangle, which is mathematically similar so to this the larger triangle. तो हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड. ये कुछ इस तरह से है कि अगर मैं यहाँ पे बना लूँ, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करके इस तरह से बना लूँ कि जो छोटा ट्रायंगल है, द स्मॉलर ट्रायंगल, so you can easily relate the corresponding length actually. Oh, so you see, if this is 9 and this is r, so r divided by 9, and this is the height, which is given 14, right? So this 14 divided by the total height of this bigger triangle, which is 21, right? So this relation we can use. The ratio of the corresponding sides, right? The ratio of the corresponding sides we can compare, because the smaller triangle is mathematically similar to the larger triangle, right? So r is equals to 14 out of 21 multiplied by 9. So
7 2s are 14, 7 3s are 21, 3 1s are 3, 3 3s are 9, and 2 times 3 is 6. So this is the radius for the smaller cone. So I guess we know all that we need. That volume of the larger cone is, the radius for the larger cone is 9, and the height of the larger cone is 21. The radius of the smaller cone is now what, 6, and the height is given, that was 14. So now you can calculate it. 1 upon 3 pi, we can shorten the calculation. We can take 1 upon 3 pi common. So this is 9 square into 21 minus 6 square into 14, right? So let's calculate that. 1 divided by 3 multiply with 6 square into, not 6 square, 1 upon 3 into pi into 9 square times 21 minus 6 square times 14 bracket over 399 pi. So 399 pi proved. Now the next part is we need to find out the total surface area of the solid. For total surface area of this solid is actually what? Firstly, the curved surface area of the cone, of a larger cone, curved surface area of the larger cone, and which is pi RL. For that we need this slant height, right? And we can find this out because we know that this is 21 and this is 9. So we can apply Pythagoras theorem that the slant height for the larger cone is 21 square plus 9 square, 21 square plus 9 square, which is L root 522, right? So the next is the area of the ring, this ring. The bigger circle minus a smaller circle will give you the area of the ring, right? Area of the ring. So this is easy. Pi capital R square minus pi small r square. हम बड़े एरिया सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द रिंग आ जाएगा. और फिर area inside of the cone, right? The inner curved surface area. The inner curved surface area of the cone, that is also pi RL. And for that we need this slant height also. We know that for this small, this radius was 6 and this is 14. So we can calculate this slant height, right? This slant height of the cone. So in order to find this L square is going to be 6 square plus 14 square. So 6 square plus 14 square is 232, the root 232, right? So we know all that we need. The total surface area, firstly, the outer surface curved surface area of the cone, which is pi RL. So pi radius would be 9 and the slant height would be root 522
plus pi capital R square, this area of the ring, the bigger circle minus smaller circle, pi capital 9 square minus pi 6 square plus the inner curved surface area of the cone, which is pi, radius was 6 and the slant height was root 232, right? So let's calculate this. Pi times 9 times root 522 plus pi times 9 square minus pi times 6 square plus pi times 6 times root 232. And the answer is 1074.47. So final answer is 1074.472. राइट मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी. आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14 कहता है that volume of the sphere is 4 upon 3 pi r cube. We know that surface area of the sphere is 4 pi r square. और जो डायग्राम में गिवन है, this is hemisphere. The diagram shows a wooden bowl. It is made up of a large hemisphere with a small hemisphere removed from the center. The diameter of the large hemisphere is 20. The diameter is 20. So हम मार्क करते चलते हैं कि जो रेडियस होना चाहिए for the large hemisphere should be 10, जो कि 20 divided by 2 है. And the width of the rim is 2. The width of the rim is 2. That means radius of the small hemisphere which is removed from the large hemisphere should be 10 minus 2, yani 8. So let's name it capital R and name it small r. Right, centimeter, of course. We need to show that the total surface area of the bowl is this. So total surface area here is the curved surface area outside this outside the area of the ring, right? The area of the ring, the bigger circle minus the smaller circle, and the inner surface area of the bowl, the hemisphere which is removed from inside, right? So total surface area is pi capital R square. Acha, the total surface area of the sphere was 4 pi r square. So for hemisphere, the curved surface area would be half of the 4 pi r square, which is 2 pi r square, plus area of the ring. Ring is the bigger circle minus the smaller circle. Then inner surface area. Inner surface area would be 2 pi small r square, right? So we know all that we need to put in. The radius is 10 for the outer surface, and for the inner surface, for the smaller circle, the radius is 8, and this is 2 pi r square, यानी 8 square. I hope की बात समझ आई होगी. ये इसलिए था कि आउटर सरफेस एरिया जिसके लिए रेडियस 10 था, फिर ये एरिया ऑफ द रिंग है which is a bigger circle minus the smaller circle, and the curved surface area inside has radius 8, और फिर ये इसका फॉर्मूला है, राइट? तो अब आप इसको पुट कर दीजिए इसमें. So 2 multiplied by 100, all are with pi, right? So then plus 10 square, then minus 8 square, then plus 2 in
to 8 square is 64. So 364 pi centimeter square, of course. So proved. Here, the ball is made from wood. The mass of 1 centimeter cube of the wood is 0.74 gram. This is basically the density which is given, right? Density is mass per unit volume. So the mass is 0.74 grams in 1 centimeter cube. So this is 0.74 gram per centimeter cube. This is the density which is given. We need to calculate the mass of the ball. So this is easy. From the very basic definition of the density, we know that density is equals to the mass divided by volume. And because we need to calculate the mass, so that means this mass would then equals to density multiplied by the volume, right? So density is 0.74 and the volume would be what? Volume of this wood is the bigger hemisphere minus the smaller hemisphere. So the volume of the sphere is given here 4 upon 3 pi r cube, and we need to divide this by 2. So this would become 2 upon 3 pi r cube, the volume of the hemisphere. So here the volume would be pi. The bigger hemisphere have the radius 10. I'm kind of a short of a space here. So let me try with this. 2 divided by 3 pi 10 cube minus 2 upon 3 pi and 8 cube. This is going to be the answer for the mass, right? I hope this is clear, right? So let's calculate this. 0.74 multiply with bracket start करना ना भूलिएगा. 2 divided by 3 multiply by pi multiply by 10 cube minus 2 divided by 3 multiply by pi multiply by 8 cube and bracket over. So this is 756.327. So the final answer is 756.327. So correct to 3 significant figures, it would be 756, right? Because I would be needing this again. So 756 is the right answer in grams for correct to 3 significant figures. Now look at the part C. Part C कहता है कि another bowl mathematically similar to the first bowl and made from the same type of the wood. Same type of wood. The total surface area of the second bowl is this. Calculate mass of the second bowl. Okay. The first bowl, let me have the data here first, right? Let me have the data here. First bowl and the second bowl, right? First bowl, second bowl के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इसका total surface area given है 546 pi सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले का सरफेस एरिया भी हमें पता ही था और वो क्या था? वो था 756.327. नहीं, नॉट दिस. हमें पता था दिस वाज द टोटल सरफेस एरिया 364 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. पूछा क्या है? द मास ऑफ द सेकेंड बोल. इसका मास पता करना है और इसका भी मास हमने कैलकुलेट किया था और वो था 756
0.327। अच्छा, यहाँ याद रखिए ये राउंडेड ऑफ आंसर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि राउंड ऑफ सिर्फ फाइनल आंसर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हमें ये वैल्यू दोबारा यूज़ करनी पड़े सवाल में तो फिर हम वो यूज़ करते हैं जो बगैर राउंड ऑफ की हुई वैल्यू होती है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिमिलैरिटी में हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ रखी है अभी तक, वो क्या है? वो हमने ये पढ़ रखा है कि भाई अगर वॉल्यूम का रेशो होता है तो वो लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 क्यूब के बराबर होता है, और अगर एरिया का रेशो होता है सिमिलैरिटी में तो वो लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, मास का जिक्र है। तो पहले तो एक चीज़ ये समझिए कि ये जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है, और मास का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। सो बेसिकली द बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा वुड का, उतना ही मास भी उसका ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम के लिए आप फॉलो करते थे क्यूब का रिलेशन, एक्चुअली मास के लिए भी वही फॉलो करोगे, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास 1 अपॉन मास 2 के लिए आप रेशो इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा। अच्छा, अभी भी खैर चीज़ थोड़ी सी अनक्लियर है। हम अगर यहाँ पे नाम दे भी दें कि यार ये एरिया 1, ये मास 1, और ये एरिया 2 और ये मास 2, ये दोनों तो लेंथ के बराबर हैं, लेंथ के रेशोज़ के स्क्वायर के और क्यूब के बराबर हैं। तो इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? तो हम करेंगे क्या, हम पहले अप्रोच डिसाइड करते हैं कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। हमें क्योंकि दोनों एरियाज़ पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो हम इन दोनों एरियाज़ को यहाँ पुट कर देंगे, एरिया 1 एरिया 2 की जगह, और इसमें से लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का जो रेशो है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हम लेंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन इसका रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर ये रेशो यहाँ पे पुट कर देंगे। और एक मैथ्स तो हमको पता है, तो दूसरा मैथ्स हमको पता चल जाएगा, राइट। सो दिस इज द आइडिया। सो यही करते हैं। एरिया वन इज 364 पाए, तो इस एरिया 1 की जगह लिख देते हैं 364 पाए, और एरिया 2 की जगह लिख देते हैं 546 पाए। लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 और फिर इसका स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का रेशो पता चल जाएगा। पाई से तो ये पाई कैंसिल, तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 364 डिवाइडेड बाय 546। 364 हमने एरिया 1 रखा और 546 एरिया 2 रखा, और इसका जो रेशो हमारे सामने आ गया वो 0.8164 आ गया, राइट। अच्छा, अब ये लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 मास 1 ओवर मास 2 के बराबर रख देते हैं। ये जो मास 1 ओवर मास 2 है, लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का जो आंसर हमारे पास आया है 0.8164, इसका कर दिया जाए क्यूब, और मास 1 क्योंकि हमें पता है 756 है, तो इस मास 1 की जगह 756.327 डिवाइडेड बाय दिस मास 2 जो कि हमें पता करना था, बराबर रख दी जाए 0.8164 क्यूब के। अभी यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ के डिवाइड करेगा। 756.327 divided by 0.8164 cube, that would equals to m2, the mass that we need to find out. So ये जो 0.816 क्यूब है, ये जो भी आंसर है इसका लिया जाएगा क्यूब। ये जो भी क्यूब आ गया है 756.327 divided by answer
So this answer is 1389.4. So 1389.46 ये M2 आ गया. तो correct to three significant figures, this mass would then equals to 1390, right? Grams, of course. I hope ये बात समझ आई होगी. आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी एक अच्छा सवाल है. The diagram shows a regular pentagon ABCDE with center O. AB is 6, OA is D. अच्छा, अब ये क्योंकि स्ट्रेच हुआ हुआ है तो ये रेगुलर पेंटागन देख के लग नहीं रहा है, वरना आपको पता है कि रेगुलर का मतलब क्या होता है. ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. सही है, ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल इन लेंथ एंड मेजरमेंट, राइट. सो अब हमसे कहा यह जा रहा है कि शो दैट दिस डी इज 5.10 सेंटीमीटर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. चले जी, पहले तो आप ये समझें कि ये डी निकलेगा कैसे. अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो वो 6 को हाफ यानी 3 और 3 में डिवाइड कर देगा, राइट. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है. इसमें ये एंगल आप निकाल सकते हैं. कैसे? आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n ऐसे कैलकुलेट होता है. अब पेंटागन का मतलब है कि n5 है क्योंकि 5 साइड वाली तस्वीर है. सो दैट मीन्स एक एंगल 5 - 2 इंटू 180/5 के बराबर होगा, यानी कि 3 इंटू 180/5 होगा, यानी 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5 होगा, यानी कि 108 होगा. और ये जो एंगल बनना चाहिए ये एंगल 108 है, तो ये इसका हाफ होगा क्योंकि ये एक सिमेट्री बन रही है. ये बाइसेक्ट करेगा इन सारे एंगल्स को एक जैसे. 5 जो है वो ट्रायंगल्स बनेंगे. सो बहरहाल दिस एंगल इज गोइंग टू बी 108 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 54 डिग्री, राइट. मैं इस 3 को यहाँ से हटा के यहाँ लिखता हूँ. ये एंगल 54 है. सो अगर आप देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जी. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बीच में जो बन रहा है वो 54 डिग्री का बन रहा है. तो इस पर कॉस थीटा लगा के आप ये डी निकाल सकते हैं, राइट. सो हम कहेंगे कि कॉस 54 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस. सो डी मल्टीप्लाई करेगा कॉस 54 डिवाइड करेगा. दिस इज कॉस 54. सो 3 divided by cos 54 is 5.10. Correct to 2 decimal places, right? You can see in the calculator. तो ये 5.10 बना. ओके, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है. ओके, द रेगुलर पेंटागन ABCDE फॉर्म्स द बेस ऑफ द पैरामिड, राइट. Okay, the vertex F is vertically above O. Okay, the length of the each sloping edge is 14. Each sloping edge is 14. ठीक है. Calculate the volume of the pyramid. अब हमें बता दिया इसने कि वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड का फॉर्मूला असल में ये है. तो हम यहाँ लिखते हैं कि जी ये जो वॉल्यूम है ये ऐसे कैलकुलेट होगा कि 1/3 base area into height. Now, the height and the base area we need to find out. This base area, this base is a regular pentagon, right? तो इस पेंटागन का एरिया कैसे निकाला जाए? अब इसके लिए कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है. तो हम एक काम कर सकते हैं. हम ये काम, इसको क्या हो गया, हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस सबको मिटा देते हैं पहले तो. ठीक है, हम एक काम ये कर सकते हैं
हमें एंगल तो पता है कि ये एंगल 54 है, और देखें तो ये एक ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, राइट। और इस डी की वैल्यू हमें पता है 5.103 है। तो हम अगर चाहें तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन था, तो इस जैसे क्योंकि 1 2 3 4 और 5 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास पेंटागन का एरिया। तो इस वक्त एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो बेस्ट फॉर्मूला होगा वो 1/2 AB साइन C होगा, क्योंकि हमें 6 पता है, हमें D पता है और उनके दरमियान का एंगल पता है, और यही होता है A और B दो साइड्स और C उनके दरमियान का एंगल होता है। तो हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे जी कि ये बेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए कि 1/2 बेस एरिया 1/2 AB साइन C, मतलब D की वैल्यू 5.1 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू साइन 54, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, क्योंकि इस जैसे 5 ट्रायंगल होंगे, right. So this is going to be 1/3 multiplied by base area. Base area is 1/2 5.1 into 6 into sine 54 into height. This height we also need to find out. अब हमको ये d क्योंकि पता चल चुका है 5.1, और ये हाइट है पिरामिड की, और ये 14 है, ये 14 है। तो अगर आप सोचें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरह कि ये 14 है, ये 5.1 है। सो दिस हाइट वी कैन फाइंड आउट। हम कहेंगे जी 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस 5.1 स्क्वायर। सो दिस हाइट इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर माइनस 5.1 स्क्वायर, राइट। सो दिस हाइट इज 14 स्क्वायर माइनस 5.1 स्क्वायर। ये सारी चीज़ें अब आप एक साथ इस कैलकुलेटर में रख सकते हैं। कुछ काम आसान बनाने के लिए 2 1 2 2 3 6 कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जो 5.013 आया है सही, ये आंसर मल्टीप्लाई बाय साइन 54 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर माइनस 5.1 आगे कुछ और भी था, बहरहाल जो भी था 103 था, 5.103 था। वो कैलकुलेटर में ऊपर आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। ये जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर कुछ गड़बड़ हो गई है। दिस आंसर 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अच्छा, इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये जो भी आंसर आया है मल्टीप्लाई बाय 5। सो दिस इज गोइंग टू बी 285 पॉइंट। अच्छा, ये 5 से मल्टीप्लाई सही हुआ है या नहीं हुआ है? सो हम इसको एक दफ़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे 285.252, राइट। सो ये आंसर है इसका। सो लेट्स कैलकुलेट दिस अगेन ज़रा साफ सुथरे अंदाज में। पहले तो 1/3 है मल्टीप्लाई बाय ये जो बेस एरिया था 1/2, यानी कि इसको मैं 5/2 लिख लेता हूँ। इस 5 को यहीं लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। सो 5 ऐसे, अरे क्या हो गया, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5
over 2 into 5.103 multiply by 6 multiply by sin 54 to make sure कि ये एंगल डिग्रीज में है या 80 डिग्रीज में है and bracket over multiply by square root of 14 square minus 5.103 square. आंसर इज 269.17. हाँ, मुझे शक हो रहा था कि कुछ गड़बड़ की है, तो ये ऐसे कैलकुलेट किया है 269.107. राइट. सो होप ये बात समझ आई होगी. मैं कैलकुलेटर में लिख इसलिए रहा हूँ आपके सामने कि आपको नज़र आ जाए कि ये कैलकुलेशन लिखी कैसे जाती है कैलकुलेटर में. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पेपर 2. ठीक है. आई होप ये बात समझ आई होगी. क्वेश्चन नंबर 24. इसको देखें जी. ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ये है, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ये है. ओके जी. फिर उसमें कहता है कि द डायग्राम शोज अ सॉलिड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ सिलेंडर टू अ हेमिस्फीयर. एक सिलेंडर को हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया गया. द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 9. जो डायमीटर है सिलेंडर का वो 9 है. एंड इट्स हाइट इज 16. नज़र आ रही है. द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है. तो शो दैट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7.86. तो गुड. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर is equals to the volume of cylinder. right. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ कोर्स इसको जब आप डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. यू नो दैट. अब दिस इज वी नीड टू फाइंड आउट. बाकी सब चीज़ें तो हमें पता है. ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर अगर 9 है तो इसका रेडियस जो है वो 9 का हाफ यानी कि 4.5 होगा. ठीक है. एंड दिस आर वी नीड टू फाइंड आउट. दिस आर वी नीड टू फाइंड आउट. इसको रब करूँ तो इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया. आर क्यूब. दिस आर वी नीड टू फाइंड आउट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन. हमको सिलेंडर के बारे में बता दिया है कि इसका जो रेडियस है वो 4.5 है. इसकी जो हाइट है वो 16 है. ये 3 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा और ये जो 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये यहाँ आकर डिवाइड करेंगे. पाई और पाई कैंसिल भी हो जाएगा और ये सब कुछ आर क्यूब है. तो आर निकालने के लिए आप क्यूब रूट बोथ साइड ले लेंगे ताकि क्यूब से ये क्यूब रूट ख़त्म तो आर बचे. और इसको आप कैलकुलेटर में लिख देंगे कि शिफ्ट क्यूब रूट ऑफ 4.5 स्क्वायर इंटू 16 इंटू 3 divided by 2. So this answer is 7.86. Correct. 8622 यानी कि 7.86 correct to 2 decimal places proved. अच्छा जी. The next part is calculate the total surface area of the solid. अब इस सॉलिड में जो सरफेस एरिया है वो तो कर्व सरफेस एरिया है स्फीयर का. फिर है जी रिंग. बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल तो ये रिंग का एरिया आ जाएगा. राइट. और फिर है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और फिर है सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल. राइट. तो 1 2 3 4 फेजेस में इस सॉलिड का सरफेस एरिया कैलकुलेट होगा. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
कि जी इसका टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का आएगा, फिर रिंग आएगी, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आएगा, फिर एरिया ऑफ सर्कल आएगा. राइट, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दैट. अच्छा जी, अब सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमी स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. सो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर. और कर्व सरफेस एरिया हेमी स्फेयर का, अभी हमने इसका रेडियस निकाला था, वो ये था, तो 2 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम रख देंगे 7.8622 और इसका स्क्वायर. राइट, प्लस एरिया ऑफ द रिंग. एरिया ऑफ द रिंग का मतलब क्या था कि बड़ा सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल. राइट, लार्ज सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल. सो बड़े सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 7.8622 स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल का रेडियस हमें पता था 4.5, यही स्मॉलर सर्कल नीचे भी होगा ना. सो पाई 4.5 स्क्वायर, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर में यहाँ लिख देता हूँ 2 पाई आर एच. एच इज 16 प्लस एरिया ऑफ द सर्कल, जो टॉप पर एक सर्कल बना हुआ है, क्योंकि ये एक सॉलिड था, इसका मतलब है कोई जगह हॉलो नहीं है. सो प्लस पाई 4.5 स्क्वायर. अब इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आ रही है कि प्लस पाई 4.5 स्क्वायर माइनस पाई 4.5 स्क्वायर कैंसिल, और ये 2 पाई प्लस पाई ये हो जाएगा 3 पाई 7.8662 स्क्वायर. यानी कि जो भी आंसर है इसका स्क्वायर कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया जाए, प्लस 2 टाइम्स पाई टाइम्स 4.5 टाइम्स 16 कर दिया जाए, तो आंसर आ जाएगा 1034.97. सो दिस would then be equal to 1034.977. सो अगर इसको एग्जैक्ट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दें तो 103 और फिर ये 4 है तो 0 ही हो जाएगा. ठीक है जी, 1030. अच्छा जी, अब इधर देखिए, ये थोड़ा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. जी, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस वीडियो, मतलब रीड दिस क्वेश्चन. The diagram shows a semicircle with radii OP and OQ drawn, right? The circle center C touches the radii at A and B. Okay, we can see that. And the semicircle at T. Okay. The radius of the circle is 1.8. We can see that too. And BCA angle is 120. ये एंगल 120 है, ये 1.8 है. ये जो सर्किल है ये टच करता है इन दोनों लाइंस को, ये टेंजेंट है इस पे, और ये सेमी सर्किल की बाउंड्री को भी टच करता है at point T,
और फिर यहाँ पे एंगल जो सेंटर पे बन रहा है वो 120 है। पहला सवाल, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ए बी। अब आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगल ओवर 360 इंटू 2πr। हमें इसमें तो सब चीज़ें पता ही हैं, हमें एंगल भी पता है। इस माइनर आर्क ए बी की लेंथ पूछ रहे हैं, मतलब असल में ये पूछ रहे हैं। तो इसका एंगल 120 है। Out of 360 into 2 into pi into r, radius is 1.8. So this is easy to calculate. 120 divided by 360 multiply by 2 multiply by pi multiply by 1.8, and the answer is 3.769. अब इसको क्या हुआ, 3.7699, so 3.77 correct to 3 significant figures, right? Okay. अच्छा, ये वैल्यू 3.7699 हम लिख लेते हैं 12। अब जानते हैं कि वैल्यू अगर बाद में यूज़ करनी पड़े तो उसको कम से कम भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने आंसर लिख दिया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे इसके लिए, जो कि ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू दोबारा यूज़ करनी पड़े तो वो कम से कम भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो ठीक होनी चाहिए। तो मैंने एहतियातन यहाँ पे 5 ही रख लिए। एनीवे, आई डोंट नो वेदर ये यूज़ होगा आगे या नहीं। आगे देखते हैं जी क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है द शेडेड रीजन लाइज बिटवीन द सर्कल एंड द रेडियाई OP एंड OQ। ये शेडेड रीजन जो नज़र आ रहा है हमको, ये OP और OQ और सर्कल के दरमियान का एरिया है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें इसका पेरीमीटर चाहिए। वेल, आर्क तो हमें पता है ये यूज़ होगी। अब हमको चाहिए OA और OB। अब ये कैसे निकलेगी? अगर आप नोटिस करें तो ये जो है ये असल में बन रही है काइट। हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, और यहाँ से अगर मैं एक लाइन बनाऊँ तो ये 120 का हाफ 60 डिग्री में बाइसेक्ट हो जाएगा। और रेडियस क्योंकि हमें 1.8 पता है, तो 60 और 1.8 को इस्तेमाल करके ये OA कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट? तो OA और OB बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल बराबर होंगे, राइट? तो हम OA निकाल लेंगे, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो OB की लेंथ भी आ जाएगी। तो ये दोनों और ये आर्क लेंथ ऐड होगा तो ये पेरीमीटर आ जाना चाहिए इस शेडेड रीजन का। पेरीमीटर आप जानते हैं कि बाउंड्री को कहते हैं, और शेडेड रीजन की बाउंड्री में इस वक्त क्या क्या है? शेडेड रीजन की बाउंड्री में OA है प्लस OB है। हम निकालेंगे OA, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो OA और OB दोनों की लेंथ आ जाएगी, और प्लस है आर्क लेंथ, आर्क AB। ये टोटल पेरीमीटर है शेडेड रीजन का। सो दिस OA वी कैन फाइंड आउट। हमने पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि ये ऑपोजिट और एडजेसेंट ये होता है tan थीटा में, तो हम कहेंगे यार tan 60 बराबर है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 1.8। सो दिस OA इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू tan 60। तो इस OA की जगह लिख देते हैं 1.8 इंटू tan 60। अब OB भी क्योंकि यही होगा एग्जैक्टली, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। और आर्क लेंथ हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी जो कि 3.7699 थी। तो इसी आंसर में 3.7699 में प्लस कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1060। सो दिस इज गोइंग टू बी 10.005 यानी 10.01 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 10.0 हो जाएगा वैसे,
तो 10.005 को आप 10 इसको यहाँ पे ऐसे लिख दें कि ये 10.005 आया है, और 10.0 भी लिख दें तो भी ठीक है, 10.01 भी लिख दें तो भी ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल है. शो दैट द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल इज 5.4. द नेक्स्ट पार्ट इज कि अब हमें ये शो करना है जो रेडियस है वो 5.4 है सेमी सर्कल का. सेमी सर्कल का रेडियस, जो सेमी सर्कल का रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है. सोचा जाए तो यही रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो है. रेडियस तो हर तरफ बराबर होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो है. अब बात यह है कि इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ओसी कैलकुलेट किया जा सकता है. सोचें तो इसमें ये रेडियस यानी कि 1.8 ऐड करेंगे तो ओ टी विच इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल कैलकुलेट हो जाएगा. सो ओसी निकालने के लिए क्या करेंगे? ओसी निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस. साइन अप्लाई हो जाएगा, राइट? नहीं, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस यानी कॉस अप्लाई हो जाएगा. ऐसे कि अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को गौर से देखें, ये 90 है, ये एडजेसेंट हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया. अब एडजेसेंट और हाइपोटेनियस कॉस में होते हैं ना, तो हम कहेंगे कि cos 60 is equals to adjacent over hypotenuse. Hypotenuse is OC, right? So this OC then equals to 1.8 divided by cos 60. So the required radius is 1.8 divided by cos 60 plus 1.8, right? ये आइडिया हमने पहले निकाल लिया था कि ये OC एंड CT. सो अगर इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में तो ये क्या बनेगा जी? 1.8 डिवाइडेड बाय cos 60 प्लस 1.8. दिस इज 5.4. प्रूव्ड. फिर हमसे कहा जाता है द लेंथ ऑफ बी क्यू. तो बी क्यू इज़ ऑल्सो ईजी. अगर आप देखें तो ये भी तो रेडियस है. इस रेडियस में से अगर ओ बी माइनस कर देंगे तो बी क्यू आना चाहिए. सो दिस बी क्यू इज इक्वल्स टू द रेडियस माइनस ओ बी. रेडियस कितना आया था? 5.4 आया था. माइनस ओ बी कितना आया था? ओ बी ओ ए के बराबर था और ओ ए ये था, राइट? तो 1.8 इंटू 1060. सो ये हो जाएगा 5.4 माइनस 1.8 टाइम्स 1060. तो ये हो गया जी 2.28, राइट? सो दैट इज ग्रेट. आई गेस समझ आई होगी बात आप लोगों को. ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है. 47. मैं चाहता हूँ एक दफ़ा आप ज़रा इसको पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि इसको एक दफ़ा मेरे सॉल्व करने के बाद दोबारा ख़ुद से भी आप लोग सॉल्व करें, ठीक है? हमारे सामने एक क्यूबॉइड के ऊपर एक पिरामिड रखा है. देखें जी, The four walls of a building are faces of a cuboid A, B, C, D, E, F, G, H. सही है? A, B, C, D, E, F, G, H. This is a cuboid. So, T is vertically above C. T is vertically above C. And C and G, मतलब this is a straight line. This is a straight line. ABT and ADT is 90. ABT ये हम मार्क कर लेते हैं जो जो बता रहे हैं ना.
सिर्फ डायग्राम देख के काम नहीं बनता है, ये डिस्क्रिप्शन पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। ए बी टी 90 है, मतलब ये 90 है, एंड ए डी टी 90 है, यानी ये भी 90 है। द क्यूबॉइड हैज़ लेंथ 9, 8, 5 एंड टी सी इज 6। ओके जी, हमको ये नज़र आ रहा है टी सी भी, टी सी 6 है, ये 9, 8 और 5 इसकी डायमेंशंस गिवन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डी टी, हमसे डी टी पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग नोटिस करें, डी टी ये है जो पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं कि अगर ये 9 है तो इसको भी 9 होना चाहिए। तो मैं यहाँ ट्राइंगल बनाता जाता हूँ। जो काम का ट्राइंगल है डी टी कैलकुलेट करने के लिए, वो टी सी और डी है। राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ये बात आप सबको समझ आती है, यहाँ बन रहा है। अब टी सी 6 है और ये 9 है, तो डी टी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, so this is 3 under root 13 and 10.816, यानी 10.82। या 10.8 भी लिख देंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ठीक होगा। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 10.8। ज़्यादा डेसिमल, ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर लिखना यूजुअली एग्जामिनर उसको पेनलाइज नहीं करता, लेकिन बिकॉज द रूल इज गिवन राइट इन द पेपर के आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे फाइनल आंसर देखना है, तो 10.8 लिखना इज अ वाइजर ऑप्शन। So, the roof is formed by 4 triangles, ABT, BCT, CDT and DAT. Calculate the length, the total surface area, not length. Calculate the total surface area of the roof. Okay. अब ये बता दिया उसने कि ये 4 ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया आपको चाहिए, ABT, BCT, CDT एंड DAT। ठीक है, तो लाइन वाइज हम भी ये एरियाज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि जी पहले वो कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABT। अब ABT को ज़रा देखें कहाँ है। ABT में इसने बता दिया था कि यहाँ 90 है और ये 9 है, इसका मतलब है TB कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप TB को गौर से देखें तो ये भी TC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 6 है और BC 8 होना चाहिए। तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो ये 10 आ जाएगा। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 64, दैट मेक्स इट 100 एंड दैट मेक्स इट 10। ये TB स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो TB 10 आ गया। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस हमें नज़र आ रही है 9 और ये हाइट नज़र आ रही है इसकी 10। सो हम कहेंगे कि जी 1/2 AB इंटू BT, यानी 1/2 9 इंटू 10, यानी 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 9s are 45 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ABT। फिर बात करते हैं BCT की, फिर हम बात करते हैं BCT की। BCT तो इजी है, ये 90 है। BC is 8 and TC is 6, so 1/2 base into height, BC into CT, 1/2 8 into 6, so 2 1s are 2 4s are and 4 6s are 24 मीटर स्क्वायर इज दिस एरिया। अब यहाँ जगह ज़रा कम है क्योंकि मैंने क्रॉप की थी तस्वीर, मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। ABT BCT हो गया। अब CDT की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDT। राइट, तो ये इस वक्त हम C पार्ट को बाद में सॉल्व करेंगे, इसको फ़िलहाल इग्नोर कीजिएगा। सो एरिया ऑफ CDT 1/2 CDT में ये हाइट है और बेस वुड बी 9, यानी कि DC इज़ द बेस
Yes, CD is a base and height is TC, यानी 1/2 into 9 into 6. So 2 1s are 2 3s are 9 3s are 27 meter square is the area of CDT. And finally the area DAT. तो DAT का जो एरिया होगा उसके लिए आपको DT चाहिए. वो DT आपसे निकलवा ली थी इसने पहले 3/13, राइट. ये हाइट होगी ट्राइंगल की और ये बेस होगी ट्राइंगल की, राइट. सो क्योंकि डी पे 90 डिग्री बन रहा है ऐसा उसने पहले ही हमको बता दिया था. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADT is half, base is AD and height would be DT. 1/2. AD is 8 and height is 3/13. इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. 0.5 into 8 into 3 into √13 जो कि 43.266 आ गया. अब करना क्या है, इन सब को ऐड करना है. 45, 24, 27 and 43.266. So 43.266 plus 27 plus 24 plus 45, 139.2. तो ये हो गया जी 139.266 आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूफ. हमको बता दिया था कि रूफ में 4 ट्राइंगल्स हैं, नाम भी बता दिए थे और फिर कहा था कि टोटल सरफेस एरिया बता दे, तो हमने बता दिया भारत. फिर आपसे कहता है कि जी द वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, और हमें ऊपर बताता है कि वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड जो है वो ये है. तो वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग कैसे कैलकुलेट होगा, ये पार्ट सी अब हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, अब इसमें क्यूबॉइड है और पिरामिड है, राइट. क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एंड पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट. तो भाई इसकी लेंथ विड्थ हाइट तो बड़ी क्लियर थी क्यूबॉइड की, 9 8 और 5. तो 9 into 8 into 5 plus 1/3. Base area is a rectangle here which is 9 into 8. And height of the pyramid is 6 TC. 6, ये 3 लिखा था. तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 9 into 8 into 5 प्लस ये 3 1s are 3 3 2s are 6 हो जाएगा, तो प्लस 9 into 8 into 2 504 मीटर क्यूब, यानी क्यूबिक मीटर, राइट. सो दिस इज इट. इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब आगे सवाल आपका कुछ सेक्टर से रिलेटेड है और काइंड ऑफ अ गुड क्वेश्चन. चलें जी, इसको फिर एक काम करते हैं, हम अपनी थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो के लिए रख लेते हैं. आज का काम यहीं तक रखते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.